बेटा लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1. हमने 1.1 के क्वेश्चंस किए थे, कल 1.3 के कर रहे थे, है ना. 1.3 we discussed. Then in 1.2 you are having the questions like write down a pair of integers whose sum is -7, whose difference is this, whose sum is 0. All these questions you are going to revise yourself because I have discussed this in the class earlier. ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बेटा आपके साथ पास आ सकते हैं. इसमें आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, तो यू हैव टू थिंक फॉर द पेयर ऑफ नंबर्स, राइट. सो दिस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन, क्योंकि इसके कितने सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो वो आप खुद सोचकर आंसर लिख सकते हो. 1 or 2 sums on the board, start doing it. Start solving. Bhavya, raise your hand. Do this question. Who will give the answer of the first question? Yes, Suhana. Minus 36 divided by 12 is equal Answer to bolo, minus. direct answer. Answer, direct answer bolo beta. Ma'am, -1. -1. Look here on the board. First of all, we have to solve this bigger bracket. 12 3 is 36. So -3 आएगा, इसको solve करके divided by 3. -3 over 3. Answer is -1. See this second question. You know you need to solve this big bracket first. So beta, in this we have -6 plus 5. I have removed this bracket, divided by -2 plus 1. Answer is -6 also plus 5 1. is -1 divided by again -1. 2 minus 1, 1 with minus sign. So -1 over -1 is 1. Right? Mute yourself, Puranjay. Is 1.1 question number 6. Rita goes 20 kilometer. निकालो सारे बच्चे पेज नंबर 4. Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to the point B. We know इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है. Rita goes 20 kilometer towards east. एक पॉइंट है A. 20 kilometer she moves towards east और पहुंचती है B पॉइंट पे. इधर को जा रही है, ठीक है. From B she moves 30 kilometer towards west. B पॉइंट से वापस आ गई towards west की तरफ, और वेस्ट की तरफ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पहुंची C पॉइंट पे. कितना डिस्टेंस कवर किया बेटे? 30 किलोमीटर्स. If the distance toward east is represented by a positive integer, how will you represent the distance towards west? ठीक है, one is right side, one is left side. वो कहते हैं कि अगर ईस्ट की तरफ जाने के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है तो उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्वियसली विद नेगेटिव साइन. सो फर्स्ट आंसर है, how will you represent the distance traveled towards west? Distance traveled towards west will be represented by a negative sign. Then question is, by which integer will you represent her final position from A? अब देखो, ये आपका घर है,
ठीक है, आप 20 किलोमीटर पहले इधर गए, फिर आप वापस आए कितना 30। अब जब आप 30 किलोमीटर वापस आ रहे हो तो आप एक जितना 20 गए थे पहले तो आप उतना ही 20 वापस आए, फिर उसके बाद 10 आपने आगे क्रॉस किया। ये फाइनल व्हाट इज उसका जो फाइनल पोजीशन है, यू हैव टू टेल, यू हैव टू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब उसके इनिशियल पोजीशन से। सो फाइनल पोजीशन is represented by minus 10 kilometers, where minus sign represent direction towards west. Kanav, is it okay? Read about the properties also. ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. देयर इज क्लोजर प्रॉपर्टी, commutative property and associative properties. Let us discuss quickly. Closure property होती है under addition, subtraction, multiplication and बेटे under division. Closure property अब हम किसकी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं integers की. किसकी कर रहे हैं, integers की. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं, अंडर एडिशन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इफ वी आर एडिंग टू इंटीजर्स, वी नो इंटीजर्स आर व्हाट, ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल द नेगेटिव वैल्यूज अलोंग विद जीरो आर ऑल इंटीजर्स. ठीक है, आप कोई भी दो नंबर्स को प्लस कर लो, -7 + 4, आंसर इज -3. You will see whenever you add two integers, you will always get an integer. So it implies closure integers are closed under addition. ये आपको पूरा लिखवाया हुआ है, अभी सिर्फ समझ लो, लिखना नहीं है, ये सारा आपने लिखा हुआ है. Integers जो होते हैं वो closed होते हैं under addition. Similarly, if you subtract any number, 4 - 3 1, or -7 - 8 is -15, right? When you see that whenever you add two integers, integers में से integer को माइनस करोगे तो integer ही आएगा. कोई भी दो नंबर्स को माइनस करोगे, या पॉजिटिव वैल्यू आती है या नेगेटिव वैल्यू आती है या जीरो, है ना? तो इट मीन्स इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे, यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर. सो इट इंप्लाइज इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन आल्सो. ठीक है, देन बेटा मल्टीप्लिकेशन, इट इज आल्सो, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन आल्सो. 4 × 6 24, ये तीनों क्या है, इंटीजर. -1 × 0 0, ये तीनों भी क्या है, इंटीजर्स. So whenever you multiply any integer with any integer, you always get an integer. So it is, integers are closed under multiplication also. अब देखो, 4 is an integer and 3 is also an integer. आप ये ऐसे करो, एक मिनट, 3 is also an integer, 2 is also an integer. डिवाइड करेंगे, जब हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया, 1.5, and this 1.5 is not an integer. So from here what we have concluded, that integers are not closed under division. कोई भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हो तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए. सपोज अगर आप 4 को 2 से करते हो तो 2 आता है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर. बट in this case it is true, but it is not true in all the cases. So therefore integers are not closed under division. So in this MCQ can be asked that integers are closed under, are not closed. Suppose integers are not closed
composed under addition, subtraction, multiplication, division. बात समझ में आ रही है ना बेटे? तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें इंटीजर्स की होल्ड नहीं करती. आपका आंसर होगा डिवीजन. ठीक है, कुछ पूछना है? Commutative property. Now this commutative property are related to the two integers. दो इंटीजर्स को लेकर. इसका मतलब क्या होता है इन केस ऑफ एडिशन कि अगर आप दो इंटीजर्स को प्लस करते हो उल्टा पुल्टा करके बाय रीअरेंजिंग. If you are rearranging means you are interchanging its place, the place of two integers. Do you get the same answer? तो आप देख सकते हो आप किन्हीं भी दो नंबर्स को -7 plus 3, answer is -4, and 3 plus -7, answer is -4. 2 plus 1, 3. 1 plus 2 is also 3. तो आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव नेगेटिव. Whenever you add two integers and you rearrange, उल्टा पुल्टा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम. So integers hold commutative property under addition. बेटा सारे तो हम commutative, ठीक है. इसी तरह से अगर दो नंबर्स को सीधा देखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, दो नंबर को उल्टा पुल्टा करके ऐड करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है? सेम. दो नंबर्स को उल्टा पुल्टा करके मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आता है? सेम. एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हो. इसी तरह से अगर आप दो नंबर्स को माइनस करते हो ना बेटा उल्टा पुल्टा करके, आंसर सेम नहीं आता. 4 minus 3, आंसर इज 1. बी क्या है? 3 और ए क्या है? 4. आंसर हेयर इज -1. ठीक है, आंसर सेम नहीं आता. इसका मतलब ये है दैट इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. इसी तरह से बेटे अगर आप दो नंबर को उल्टा पुल्टा करके डिवाइड करते हो तब भी आंसर सेम नहीं आता. यू जस्ट गो थ्रू द टेबल विच वी हैव डिस्कस्ड. सो इन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. किसमें नहीं होती? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती. ठीक है, इसी तरह से आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बेटा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं होती. तो आप मतलब इसको याद रख सकते हो कि जो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं. और क्लोजर 3 में होती है, डिवीजन में नहीं. तो जो डिवीजन में कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती इंटीजर्स के केस में, ना क्लोजर, ना कॉम्यूटेटिव, ना एसोसिएटिव. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉपर्टी इज बाय टेकिंग 3 नंबर्स a plus b plus c. पहले b plus c को ब्रैकेट में रखा, दूसरी साइड a plus b को ब्रैकेट में रखेंगे. आप देखोगे जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है ना, उल्टा पुल्टा ही हो गया ना ये एक तरह का. आंसर क्या आएगा? सेम. इसी तरह से बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करो कि पहले इनको मल्टीप्लाई करके इसके साथ करो, या फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से करो, तब भी आंसर क्या आता है? सेम. आंसर आता है सेम, बट माइनस में इट इज नॉट ट्रू. सिमिलरली in division it is not same. ठीक है, तो एमसीक्यू में आते हैं बेटा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के. वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज अगेन. ओके, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, additive identity, you all know what is the additive identity? Raise your hand.
I don't want the same hands to be raised. बस 3 बच्चों को पता है एडिटिव आइडेंटिटी. What about others? 4, 5, 6. ये additive identity is 0. Additive मतलब ऐड करना. कोई भी नंबर ले लो. 9. इसमें क्या ऐड करोगे कि 9 नहीं आए? 0. 10 plus 0, 0. 6 plus 0, 0. Minus 9 plus 0, minus 9. So 0 is the number which when we add to any number, we get the answer a same number. So which is the additive identity? 0. And then we have multiplicative identity. Multiplicative identity होती है बेटे 1. 9 into 1, 9. 10 into 1, तो कौन सा नंबर है जिसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वही नंबर आंसर आता है? 1. So additive identity is 0 and multiplicative identity is 1. ये हो गए. एक बेटा टर्म होती है एडिटिव इनवर्स, वो भी करवा देती हूँ. यू नेवर नो, बाय चांस पेपर में आ गया. एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स होता है जैसे मान लो आपके पास है नंबर 7, ठीक है. इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज -7. मीन 7 में क्या ऐड करेंगे कि आंसर आए 0? उसी का नेगेटिव. So what do you mean by additive inverse? If you are having a positive number, its additive inverse is same number with opposite sign, that is -6. And if you are having a number negative, उसका additive inverse क्या होगा? Positive. दोनों को ऐड करोगे 0, दोनों को ऐड करोगे 0. So additive inverse क्या होता है? जो भी नंबर है वही नंबर बट ऑपोजिट साइन. माइनस है तो प्लस एडिटिव इनवर्स, प्लस है तो माइनस. ठीक है. चलो शाबाश. Hurry up. Now the values of A, B and C are given to you. You have to verify that this is not equal to this. So you will solve the left hand side separately, right hand side separately, and then you will see that the answer are not equal. But इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब solve करोगे तो solve correctly करना है. Though the answer is not same, but still you have to solve correctly. Hurry up. Start doing. Take these values and then verify the same. Only 1 minute is left, so let me discuss. You will take left hand side and we will put the values. Values आपके पास थी 12 minus 4 and 2. 12 divided by minus 4 divided by 2. So 12 divided by -4 over 2 कितना होता है? -2. -4 divided by 2. 2 आएगा but with negative sign. Further it is 12 over -2, 6. आंसर अब आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड का -6. राइट हैंड साइड में 12 डिवाइडेड, ये इक्वल टू नहीं डालना बीच में, या ऊपर नीचे करो या लाइन लगा के. 12 divided by -4 plus 12 divided by 2. क्योंकि b की वैल्यू नेगेटिव थी तो उसको ब्रैकेट में डाला. इसको सॉल्व करेंगे. 4 के टेबल में 12 3 पे बट विद नेगेटिव साइन, -3
प्लस यहाँ क्या आएगा 6. So minus 3 plus 6, answer is 3, which you can see is not equal. So hence the left hand side is not equal to right hand side. Hence it is verified. Right, bete? Students, number 1. Okay, time is over. Any doubt we will discuss tomorrow. Right? So take care everyone.